Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with a multi-time frame analysis of Nifty and Bank Nifty. I'll be not covering Sensex because Sensex और Nifty की मोटा मोटी सेम ही एनालिसिस होती है. But what I'll be doing is I'll be sharing all my support and resistance charts on X. So if you have been following me on X, you would definitely see almost every day I'll be posting support and resistance levels of Nifty, Bank Nifty and Sensex. Without wasting any time, let's get started. But before that, let me start with the disclaimer कि हम जो भी कह रहे हैं यहाँ पर it's purely and purely from educational purpose. मैं यहाँ पर कोई भी buy or sell recommendation नहीं दे रही हूँ. I'm only sharing what I plan to do and that should have no bearing as to what you guys are doing. आप आपकी analysis कीजिएगा and you do consult your financial advisor before doing anything. ठीक है? Or before starting, I'm shooting this video on 30th of March and today being a Gudi Padwa, I would like to wish all of you a very happy and a prosperous new year. So Gudi Padwachi Hardik Shubhecha. So without wasting any time, let's get started. Starting with the monthly time frame. फाइनली ये बहुत 5 रेड कैंडल्स इन अ रो जो कि हमने 1996 में देखा था, उसके बाद वी सॉ अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इन दिस मंथ एंड हमने ये लास्ट वीक में बात भी किया था दैट वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू क्लोज एट मतलब हाइस फॉर दिस मंथ. ऑब्वियसली यू डिड सी दिस. ये पर याद रखिएगा ये बहुत बड़ी टारगेट है और आई एम एक्सपेक्टिंग ये टारगेट टू अचीव इन कैलेंडर ईयर 2025. तब देखते हैं कैसा होता है क्या नहीं होता है. बट लेट्स नॉट गेट ब्लाइंडेड कि जस्ट बिकॉज देयर इज अ टारगेट वी जस्ट गो मैड एंड जस्ट गो बुलिश एट एनी लेवल. that doesn't work and these 5 months have taught the same lessons. So and इसीलिए जब भी हम पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो पैटर्न्स में ऐसा होता है जब भी ट्रेड आपकी एंट्री होती है, ट्रिगर करती है आपकी एंट्री, वहां से आप देखते हो. ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर लॉन्ग जाके आप फिर ये टारगेट के लिए प्ले करो बिकॉज द डाउन साइड इज टू मच. So that's the reason you should never get in the middle of the move. So then what you do? You have to go on the lower time frames to check, better entries and with the smaller stop losses. That's how you work. Anyways, that was a pattern related thing that just crossed my mind. That's the reason मैंने वो चीज कही. Let's go on the first of all. यहाँ पर मार्च में definitely इसने बहुत अच्छी कैंडल दी है. Did it engulf the entire candle? The answer is not yet. So let's see how it goes. Are we expecting ये bottom to be in place for the month of the March? Most likely yes, but there needs to be मतलब few more conditions that needs to be fulfilled जिसके वजह से हम कहेंगे confidently yes and let's go and check that out. चलिए weekly time frame पे what we can clearly see कि not the last week, इसके previous week मार्च की कैंडल बहुत ही अच्छी रही थी मार्च में, previous week में. और उसके बाद ये वाली जो वीक थी जो कि हमारी लास्ट वीक की थी, यहाँ पर ये एक डोजी कैंडल बनी थी. Now remember this 23,800 was very crucial for all of us, but ये 23,800 850 के ऊपर नहीं टिक पाया ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. तो नाउ लेट्स गो एंड चेक कि वो इसके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था. सो हमारे लिए वीकली में इसकी जो ट्रेंड जो चेंज होने के लिए वी नीड अ क्लीन क्लोजिंग अबाउट 23,800. ओके, नाउ ऑन द डेली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर जोन 23,800 यही एक क्लीन एक पिवट था. इसके ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए थी और अब तक हमको उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली नहीं है एंड वी आर समवेयर हियर. तो अनलेस एंड अंटिल वी आर ब्रेकिंग दिस 23,850 देयर इज नो रीजन आई विल गो aggressively longs. Only and only once we close above this 23,850 I'll go aggressively long. डेली में गुड थिंग इज वी हैड दिस पोलैंड फ्लैग और फिर हमने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक पे भी हमने देखा था. तो फॉर मी टेक्निकली आई विल गो अग्रेसिवली शॉर्ट्स बिकॉज आई फॉलो दिस पोलैंड फ्लैग का आई फॉलो दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. फॉर दोस ऑफ यू जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज गो वॉच दैट वीडियो. आप लोग को समझेगा कि हाउ ट्रेंड लाइन्स ऑल्सो एक्ट, उनके भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क होता है. तो इफ दिस वॉज अ रेजिस्टेंस तो जब भी ये यहाँ पर आएगा आइडियली इट शुड बाउंस. तो अगर ये बाउंस होने के बाद अगर वापस ये ट्रेंड लाइन के अंदर ब्रीच हो रही है दैट इज व्हेन आई विल अगेन गो शॉर्ट. उसके पहले मेरे को यहाँ पर अग्रेसिवली शॉर्ट करने की कोई रीजन नहीं दिख रही है जब तक ये इसके अंदर नहीं आता है ये ट्रेंड लाइन के अंदर. तो अगर जब तक इसके अंदर नहीं आता है और तब तक मैं अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं कर सकती हूँ एंड अनलेस मार्केट गोज अबाउट दिस 23,850 के ऊपर तब तक मैं अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं कर सकती. तो द आंसर रिमेन्स वेरी सिंपल. विद इन दिस रेंज आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन प्लेइंग स्ट्रैंगल्स. नाउ ऑब्वियसली this range looks really big. So for those of you what you guys can simply do, आप लोग यहाँ पर से फिबो लीजिएगा. ये जब से ये नेक्स्ट अप मूव हुआ है स्ट्रेट वन लाइन पे जस्ट वहां से ड्रॉ करके देखिएगा ये जब भी 38.2% विच इज 23,290. तो एटलीस्ट जब तक यहाँ पर नहीं आता है तब तक तो जस्ट डोंट बी इन अ हेस्ट टू शॉर्ट द मार्केट. एंड द बेस्ट पार्ट इज people are giving reasons like market बहुत चल चुका है इसके लिए I want to short the market. That can't be a reason. So you need to have a strong technical or a fundamental reason to short. Just don't short unnecessarily. क्योंकि जब नीचे भी आ रहा था तब भी मतलब everyone मतलब सबको लग रहा था
कि यहाँ पर ओवरसोल्ड है, यहाँ पर ओवरसोल्ड है, बट मार्केट केप्ट ऑन गोइंग डाउन. तो just don't go with this kind of a thing. It's very overbought or it's very oversold as per you. So that's the reason we rely on patterns or on some systems you need to make. You can't just rely on yourself कि just because आपको लग रहा है. So for next week what I'm expecting, ये क्योंकि इसने काफी बड़ी मूव कर चुकी है पिछले 2 हफ्तों में, I'm expecting market to just take a breather. Now take a breather basically means sideways हो जाए. एंड साइडवेज के साथ साथ एक वन गुड थिंग इट माइट हैपन, इट माइट फॉर्म अ पोल और पोल एंड अ फ्लैग और पोल एंड अ पेनेंट. तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिमेन साइडवेज फॉर द अपकमिंग वीक. याद रखिएगा अप्रैल 2 को ट्रम्प जी हम सब न्यू टैरिफ्स के ऊपर बताने वाले हैं. सो ऑब्वियसली मार्केट माइट रिमेन जिटरी. नाउ रिमेंबर, आप लोग कहोगे कि फ्राइडे को मार्केट्स वेर यूएस मार्केट्स आफ्टर आवर क्लोजिंग यूएस मार्केट्स वेर डाउन ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स. रिमेंबर मंडे को एक और ट्रेडिंग सेशन है बट हमारी मार्केट को हॉलीडे है. सो उसके बाद ही वी आर गोइंग टू ओपन ऑन ट्यूसडे आफ्टर एडजस्टिंग मंडे एंड फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन. एंड आई डोंट नो हाउ मंडे इज गोइंग टू बी. तो एंड आई एम नॉट इवन मतलब गोइंग टू पुट माई माइंड देयर. तो जैसे भी जहाँ पर भी ओपन होंगे हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे. पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हुई है मार्केट में, फर्स्टली मोर और लेस मैंने जो नोटिस किया था लास्ट ये पिछले 2 हफ्ते में अगर यूएस मार्केट्स रेड में क्लोज भी हो रहे थे, वी वर डेफिनेटली ओपनिंग विद अ माइल्ड गैप. आई वोंट इवन से मेगा गैप अप, इट्स अ वेरी माइल्ड गैप अप. लाइक अगर यूएस मार्केट्स वर क्लोजिंग लाइक -300 -400 पॉइंट्स, उसके बावजूद वी वर ओपनिंग +-40 पॉइंट्स के अंदर, विच इज फ्लैट ऑलमोस्ट. इनफैक्ट इन 2 instances आई हैव सीन अ पॉजिटिव एक +40 +35 काइंड ऑफ अ थिंग. तो दैट एक्चुअली टेल्स अस कि शायद मतलब इंडिया इज लाइक आवर मार्केट्स आर बेसिकली सेंसिंग दैट ये जो भी है प्रॉब्लम ज्यादा उनको इफेक्ट करने वाला है एज कम्पेयर टू अस. और the second thing is we have already factored in all the worst things and now we are starting our up move, maybe partially supported by our currency and so forth. तो अभी करना क्या है, unless for me I'll be doing, unless this level is breached I won't be going aggressively longs. Unless this level is breached with the trend line I am not going to go aggressively short. Within this range I am planning to deploy my non-directional trades. एंड ऑप्शन बायर्स ने डेफिनेटली पिछले 2 हफ्ते में बनाया है. एंड इफ यू कम एंड प्ले विद द सेम साइज विदाउट प्लानिंग कि ये लेवल के ऊपर ही आई विल प्ले अग्रेसिवली और ये लेवल के नीचे ही आई विल प्ले अग्रेसिवली, then you will definitely bound to lose what you have made in the past 2 weeks. Now on the 15-minute time frame I have mentioned this support and resistance. This I will be posting every day on X. You can check that those charts from there. I won't be covering Sensex के लिए because Sensex and Nifty are the same. The levels मोटा मोटी I mean obviously it's a index of 77,000 के आसपास, तो levels अलग होंगे बट मोटा मोटी चार्ट वैसे ही दिखती है मंथली कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे. लेट्स क्विकली गो टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में बढ़िया चीज ये हुई है कि देखिएगा दिस वाज द रेक्टेंगल दैट वी हैव बीन ट्रैकिंग. ब्रेकडाउन यस, बट ब्रेकडाउन के बाद क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू कैंडल. दैट डिडंट हैपन. इनफैक्ट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल. द रिवर्सल वाज सच दैट it almost engulfed. Why I'm saying almost, because see it definitely engulfed this candle which is the February candle, but it almost engulfed January candle as well. Why? Because why I'm saying almost, because इसका high ही है 51,672 and इसकी closing है 51,564. इसके लिए थोड़े और पॉइंट्स चाहिए थे to engulf properly, but nonetheless we are still happy because it definitely engulfs this particular candle. ऐसे सिचुएशन में यूजुअली इफ द ब्रेकआउट द breakdowns fail, then the market definitely plans to make a fresh high. Now let's see whether that happens with Bank Nifty or not. But Bank Nifty is much stronger than Nifty. The reason being, Bank Nifty never made a fresh low below the January candle, unlike in Nifty. In fact, Bank Nifty ने जो ये एक नई लो गैप डाउन पे हुई थी, I guess that was the day when IndusInd fiasco had happened. But after the gap down, it made a quick and the swift recovery. Very important to understand this weekly टाइम फ्रेम. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो यू कैन क्लियरली सी देयर वाज अ ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन. ब्रेकआउट के बाद मार्केट टुक अ रेजिस्टेंस हियर, देन इट टुक अ रेजिस्टेंस हियर, देन इट रेजिस्टेंस इज सपोर्ट. मार्केट ने यहाँ पर अच्छी ब्रेकआउट दी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट ली अंडर सपोर्ट, उसके बाद फाइनली ब्रोक डाउन दिस सपोर्ट. एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इट ट्राई टू ब्रेक दिस सपोर्ट, ब्रेक दिस. सो ये सपोर्ट जब ब्रेक हो जाता है इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस. इट ट्राई टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस बट देयर वाज नो फॉलो थ्रू एंड इनफैक्ट मार्केट रिवर्स फ्रॉम देयर. अब के बार जो हुआ है, देयर इज अ क्लीन ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस प्लस अ फॉलो थ्रू. तो दैट्स लाइक अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस. इसके लिए नाउ अनलेस 40
49,800 और 49,900 जब तक ब्रेक नहीं होगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, आई मीन लुक्स लाइक द मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। निफ्टी में ये होना बाकी है बट बैंक निफ्टी में क्लियरली दिख रहा है। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर वीक बैंक निफ्टी's weekly candle is much stronger than a Nifty because Nifty was just this kind of a doji candle, and that too having a longer upper wick, which indicates sellers presence more. And to tell you frankly, right now if you just check from यहाँ से all time high, Bank Nifty is just 5.6% away. So again in Bank Nifty if you see, definitely एक W का breakout हुआ था but then it failed and then it made another W and it worked, and there is another big W here. I'm pretty sure you all can see that. अब यहाँ पर भी almost एक strong pole तो बना ही है, but flag या pennant बनने के लिए market needs to spend some sideways time. तो यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा है कि this index also needs some resting period before making a fresh up move. तो जब तक ये 52,050 ब्रेक नहीं होता है तब तक we are not going to go aggressively long. शॉर्ट के लिए मेरे अग्रेसिव शॉर्ट के लिए इफ यू आस्क मी, फॉर मी इट्स ये डब्ल्यू के नीचे जब तक लो नहीं ब्रेक होता है तब तक आई एम प्लानिंग टू डिप्लॉय नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज टिल देन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिमेन साइडवेज. एंड रिमेंबर दिस इज द अपकमिंग वीक इज एन ट्रंकेटेड वीक बिकॉज वी हैव अ हॉलिडे ऑन मंडे, so effectively we'll be trading only for 4 days, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, that's all. And that too I'm on second, जहाँ पर Trump is going to announce so many tariffs on various countries. I would definitely not like to carry any aggressive positional bets overnight because I don't want to get into a situation जहाँ पर we knew कि there was an event and still took aggressive positions and then lost, and we don't know exactly what Trump is going to announce, right? And of late वो जो भी कर रहे हैं markets के लिए तो US markets तो negatively react कर रहे, so I don't want to take any chances as well. So for those of you जो लोग positionally carry करते, just reassess whether it makes sense to carry overnight on मतलब on or before 2nd of April से पहले, ठीक है? Because 2nd of April की night को मतलब we are going to react on 3rd, so उस हिसाब से plan कीजिएगा. 15 मिनट के support resistance लगाया है मैंने यहाँ पर, काफी बार market tested है. इमीडिएट सपोर्ट अगर आप यहाँ पर ये 51,000 एंड सो मेनी सपोर्ट्स हियर. द मोमेंट वी ब्रेक 52,050 आई कांट सी एनी अदर रेजिस्टेंस. डायरेक्टली मार्केट कैन मतलब एक क्लीन 1000 पॉइंट की अप मूव हो सकती है, बट ये होने के लिए इट ऑल्सो टेक्निकली मेक सेंस कि मार्केट शुड स्पेंड मोर टाइम साइडवेज, उसके बाद ये ब्रेक दे दे तो बेटर होगा. तो मैं ये दोनों शेयर करती रहूंगी मेरे एक्स पे. तो if you are new, just do follow me on X. Me and Aditya both, we definitely we keep sharing some or the other thing related to markets. So if you have not been following us, please do follow. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन. बट बिफोर वाइंडिंग अप आई वुड लाइक टू डिस्कस BTC बिकॉज आई कैन डिस्कस इंडियन मार्केट्स. तो इसके लिए हम गोल्ड पे डिस्कशन नहीं कर सकते, सिल्वर पे डिस्कशन नहीं कर सकते. देयर आर सो मेनी गुड चार्ट्स दैट आई कांट डिस्कस ऑन द स्टॉक्स. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू क्रिप्टो. तो BTC को डिस्कस कर लेते हैं हम. तो दिस इज द BTC चार्ट. ये एक हमने स्ट्रॉन्ग पोलैंड फ्लैग हमने ये आई गेस वी हैड डेफिनेटली शेयर्ड दिस एंड आई हैड शेयर्ड दिस ऑन माय X प्रोफाइल एज वेल. आप जाकर देख सकते हो टाइमलाइन पे. एंड वी हैड प्रेडिक्टेड दिस अप मूव. डेफिनेटली मार्केट डिड अचीव मोर देन आई गेस 1,03,000 या ऐसे कुछ हमने प्लान किया था, एंड 140 या 108 तक तो जाके आया है. उसके बाद देखिए इतना शार्प अप मूव के बाद इट रिक्वायर्ड सम टाइम टू कूल ऑफ. सो मार्केट ने ये किया है. बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी ये हो सकता है. और उसके बाद अगर ये ब्रेक नहीं देता है तो बट एटलीस्ट ब्रेक डाउन तो देगा, कुछ तो देगा. मार्केट को पहले थोड़ा सा साइडवेज होगा एंड देन इट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्शनल ट्रेड, एंड फाइनली इट गिव अ डायरेक्शनल ट्रेड ऑन द डाउन साइड. नो यहाँ पर अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के थियोरी के हिसाब से चलेंगे, अब ये क्योंकि पहले एक सपोर्ट करके वर्क करता था 91,330, नाउ डेफिनेटली इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस. तो जब मार्केट इसके पास में आएगा, पहले बार जब भी आएगा तो वहां से मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है. खास सपोर्ट तो अभी मतलब यहाँ पर ही है मेरे लिए तो 68,000 के आसपास. तो लेट्स सी वहां पर आती है कि नहीं. डेली में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक क्लीन और बहुत ही ज्यादा क्लीन रेंज ब्रेकडाउन है. डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हुई थी, ये शार्प अप मूव करने के लिए गई थी बट इमीडिएटली गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ये अब सेलर्स की जोन बन चुकी है. एंड रिसेंटली देयर वाज अ ग्रेट ट्रेड यहाँ पर ये 2 दिन के बाद मार्केट बिल्कुल 3-4 यहाँ पर अगर आप देखोगे इट्स बेसिकली एन इनसाइड बार. ये 3 कैंडल्स विद इन दिस पर्टिकुलर बार ऑफ 24th मार्च. जैसे ही उसने लो ब्रेक किया, कैन यू सी द बहुत ही अच्छी मूव आई है इसमें यहाँ पर. आई डोंट नो आई मीन हाउ मेनी ऑफ यू गाइज ट्रेड क्रिप्टो मार्केट्स एंड ऑल, बट उसमें अपने अलग रिस्क होते हैं. तो वॉट एवर यू डू, पहले तो आप आपके सारे रिस्क जान लीजिएगा, उसी के बाद ही ट्रेड कीजिएगा. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आई
आई एम डूइंग दिस ओनली एंड ओनली बिकॉज यहाँ पर देखिएगा देर आर पीपल हु आई हैव आस्क्ड फॉर बिटकॉइन एनालिसिस, दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग। बट जस्ट नो देर आर ऑलवेज बहुत सारे रिस्क होते हैं और उस हिसाब से आपको अगर करना है तो मतलब उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस एंड फॉर एजुकेशनल पर्पस ऑल्सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ ब्यूटिफुली द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स इन एनी मार्केट। मे बी दैट्स द पॉइंट आई वांट टू शेयर हियर। तो आप अगर कर रहे हो तो आप उस हिसाब से आप मतलब जस्ट नो व्हाट यू आर इनटू, नो योर रिस्क बिफोर हैंड, नो हाउ द रेगुलेटर इज मतलब आपके रेगुलेटर्स की क्या रोल है यहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, वो सब जानकारी होने के बाद ही यू ट्रेड दिस थिंग। अदरवाइज नो पॉइंट जस्ट गोइंग इनटू क्रिप्टो बिकॉज इसके रिस्क भी अलग है। Of course there are a lot of opportunities, I'm not saying that, but it should be done only by professionals. I mean if you are just getting attracted कि नहीं ये भी करना है वो भी करना है, don't do that. And especially when you have a very small capital, just focus on one market and try to crack that. Only then once gradually try to upscale yourself. But then this is what I believe this is what I shared because यहाँ पर कम्युनिटी में किसी ने पोस्ट किया था कि बिटकॉइन के बारे में बताइएगा। ये सारे मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल्स ही है, जस्ट दैट आई एम चेंजिंग द कलर। सो ये जब ब्रेकडाउन हुआ देयर वाज अ शार्प डाउन मूव। अब मेरे लिए यहाँ पर दिस विल एक्ट एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर मी फॉर नाउ, और मार्केट उसके बाद नीचे ही गया है। इनफैक्ट देयर वाज अ एम पैटर्न ऑल्सो जिसके बाद मार्केट और भी नीचे गया है। तो फॉर मी वेरी मच पॉसिबल कि ये मार्केट साइडवेज से थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट थोड़ा सा साइडवेज से डाउन ट्रेंड की तरफ बीटीसी थोड़े टाइम के लिए रह सकता है, जब तक ये कोई मतलब ट्रेंड चेंज नहीं करता है तब तक। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कमिंग डेली कि मैं यहाँ पर इस पे कमेंट करूँ। सो यू जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन लाइक व्हाट काइंड ऑफ हेल्प you guys need from me on the BTC charts. Do you guys want every day I need to post something on the X? So please do let me know. I can do that. That's about it. Hope you have liked this particular video, and without fail I'll try to cover BTC. और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं this is just I mean you're not interested, then do let me know in the comment section. See you all. Bye bye. Take care. Have a great week ahead.